ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ एग्जाम ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSSB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 by 1 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ 120 ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ 23-24 ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪੀ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸਿਵ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.giljmentortest.com। ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵਸ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਟ ਔਰ ਜੋ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਤਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਵਾ? ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਂਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੋਡਲਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਲਰੀ ਵਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸਿਵ। ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼, ਆਰ ਅਤੇ ਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ? ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ,
प्लस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋਏਗੀ, ਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ ਆਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਂਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਲੱਗ ਕੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, प्लस इत्थे बाई लग के और गाइज इत्थे अपने कोले की आ जाएगा, सब्जैक्ट आ जाएगा। मतलब कि जिहड़ा सब्जैक्ट सीगा वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जिहड़ा सब्जैक्ट बन जाएगा। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आप बहुत ही मैं कह सकदा हां कि 3rd 4th 5th दी क्लासेस तो शुरू हो जाता है CBSE स्कूल्स के अंदर। ठीक है, ये कंसैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना वा इंपॉर्टेंट है। जब तक असी सानू बेसिक स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा तब तक असी किसी भी कंसैप्ट नू क्लीयर नहीं कर सकते। ये जो इत्थे साडे कोले ऑब्जेक्ट बनेगा, आई मीन कि जो एजेंट बनेगा ये एजेंट बनेगा, सब्जैक्ट दा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये चीज़ तुसी अच्छे तरीके नाल याद रखना है। ठीक है, हुण देखो एक चीज़ मैं तुहानू नोट करा देना, ये तो देखो तुसी एक रूल नोट कीता है, जिवें कि आपां जे होर छोटा जिहा कंसैप्ट क्लीयर करते हैं। सिंपल प्रेजेंट मैं शॉर्ट च लिखांगा। सिंपल प्रेजेंट के अंदर यू नो वेरी वेल कि या तो वर्ब की किहड़ी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर अपने को सब्जैक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जिवें आप एग्जाम्पल ले लेने, एक जिवें मैं लिखा कि राइट और या अपने को राइट्स। ठीक है, ये इदा आएगा ना, राइट है। पैसिव के अंदर की बन जाएगा, पैसिव के अंदर ये चला जाएगा, यानी मैं कह सकता कि एम इज़ अते आर दे अकॉर्डिंग चला जाएगा। उहदे नाल यानी राइट की थर्ड फॉर्म की बन जाएगी, रिटन है। जे अपने को इत्थे सेंटेंस है, यानी मैं कह सकता हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर यू नो वेरी वेल कि जिमें कि रोट आएगा, जिद्दां आपां गल करते हैं सिंपल पास्ट यानी जो पास्ट सिंपल टेंस हुंदा आ, वर्ब दी सैकेंड फॉर्म आपां यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कादे च चला जाएगा, ये चला जाएगा अगले यानी पास्ट कंटीन्यूस के अंदर, यानी वॉज अते वर, और ये नाल आपां की करांगे वर्ब दी थर्ड फॉर्म, रोट दी थर्ड फॉर्म की होएगी, रिटन होएगी। ठीक है जी, इस तो बाद आप गल करते हैं सिंपल फ्यूचर की गल करिए आप गाइस। सिंपल फ्यूचर के अंदर आप यूज करते हैं शैल का, याद रखना शैल, अते इहदे नाल आप यूज करते हैं विल का। पैसिव के अंदर ये की बन जाएगा, पैसिव च बन जाएगा शैल विल, इहदे नाल की हो जाएगा बी का यूज हो जाएगा। काहदा यूज हो जाएगा, बी का। पैसिव दे विच ना एक बड़ा इन्हां दा मतलब हसबैंड वाइफ वाला रिलेशन जा हुंदा आ, जिवें कि बी बीन बींग, ये बड़े इकट्ठे रहणगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना तुसीं। और बी दे नाल आपां कह सकते हैं वर्ब दी किहड़ी फॉर्म लगेगी, पैसिव च थर्ड फॉर्म लगेगी। इदां ही अगर आप इस स्ट्रक्चर नूं थोड़ा जिहा चेंज करके आपां अगां वधीए, मैं इत्थे कहांगा प्रेजेंट कंटीन्यूस। अगर साडे कोले प्रेजेंट पीसी दा प्रेजेंट कंटीन्यूस है, प्रेजेंट कंटीन्यूस दे अंदर यू नो वेरी वेल कि इज आएगा, आर आएगा अते एम आएगा अगर सानू दे रखा है। और पैसिव दे विच की बनेगा कि इज आर अते एम दे नाल की लगेगा, बी दी मैं कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म की इत्थे बन जाएगी कि ING दे नाल की बन जाएगी, बीइंग प्लस वर्ब दी की हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बी दा याद रखना है कि बी हो गया एंड फिर उस तो बीइंग हो गया एंड देन वर्ब दी थर्ड फॉर्म इज बीन गिवन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इदां चलेगा ऑलवेज, सो कीप इट इन योर माइंड। इस तो बाद अगर आप गल करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूस तो बाद अगर आप पास्ट कंटीन्यूस की गल करते हैं, अगर सानू वॉज अते वर गिवन है तो गाइस इत्थे इज आर एम की जगह देखो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, बल्कि इहदे नाल वॉज वर हो जाएगा। जे आपां नूं इत्थे यानी मैं कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट PP, ठीक है, नॉट ए पंजाब पुलिस याद रख लियो तुसीं। इत्थे सानू अगर हैज़ हैव गिवन है तो इत्थे हैज़ हैव दे नाल सानू मैं कह सकते हैं कि हैज़ हैव दे नाल यानी थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म इहदे नाल जरूर आएगी। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना वा। फ्यूचर परफेक्ट की गल करते हैं। ठीक है, इत्थे आपां जी गल करिए कि FP फ्यूचर परफेक्ट की गल करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर सानू की आएगा, जिवें कि विल आएगा, इहदे नाल ही शैल आएगा। और इत्थे गाइज अपने कोले हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, जो टेंस की एक्टिव वॉइस की गल करते हैं गाइज, तो ये नाल सिर्फ और सिर्फ की हो ऐड हो जाएगा, ये नाल सिर्फ और सिर्फ बीन ऐड हो जाएगा। हुण तुसीं ये चीज़ याद रखनी है कि जदों भी सानू एक्टिव वॉइस दिता जाएगा, ये पूरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस हमेशा 8 टेंस की गल करते हैं, 8 टेंसां दा बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस का नहीं बनेगा, बिल्कुल सिमिलरिटी चलेगा। ये चीज़ तुसीं याद रखना है, एग्जाम के अंदर इदां दे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हुण आपां सिलसिला शुरू करते हैं गाइस, 1 बाय 1 शॉर्ट ट्रिक्स की होएगी थोड़े सामने करावांगा। कंसैप्ट बहुत अच्छा होएगा यार, कंसैप्ट दे विच कोई कमी नहीं होएगी अगर असीं अच्छे तरीके नाल सवाल नूं क्वेश्चन नूं मतलब ईवन कि अच्छे तरीके नाल समझांगे, रिलेट करांगे, तद ही आपां इन्हां दे अच्छे आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक बार प्लीज़ सारे शेयर कर दो। बेसिक चीज़ां तुसीं नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसनूं पर्टिकुलर पहला इरेज कर देवां, इरेज करके फिर आप इस कंसैप्ट नूं करांगे। सारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर दो, ठीक है, आंसर दो सब मैक्सीमम, मतलब कुछ टफ नहीं होएगा। हालांकि कुछ थोड़ियां चीज़ां अड जरूर मिल सकदियां तुहानूं, बट इहो जिहा मुश्किल वाला कंसैप्ट कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है जी। यस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश सारे स्टूडेंट्स। और सैशन शेयर करते चलो नाल दी नाल। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन जानी बहुत जरूरी है कि लाइव क्लासेस जो तुहाडे लई अरेंज कीतियां जा रही ने, लाइव सैशन जो किए जा रहे हैं, और इस तो अलावा जो थोनों टैस्ट सीरीज दी जा रही है, कंटेंट दिता जा रहा वा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ना थोनों हैल्प होएगी यार, ठीक है ना। यस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। शेयर करते चलना नाल दी नाल सारे स्टूडेंट्स ने। हाँ जी, पंजाब पटवारी दे भी बहुत, पंजाब पटवारी का बैच जनवरी शुरू कर देंगे असीं, सारियां क्लासेस चलणगियां, एग्रीकल्चर बिल्कुल सब कुछ होएगा, कंप्यूटर होएगा अच्छे लैवल का। चलो जी, हुण इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर नूं आपां चेक करना है। आपां नूं एक्टिव वॉइस दिता है कि सी वॉज टू। देखो तुहानूं पता है कि एक टू दी वर्ब टू दिता गया वा सानूं। अगर सपोज अगर आपां टू नूं इत्थों खत्म करिए, जे आपां इस नूं मैं अगर इदां दे दिंदा कि सी वॉज, ठीक है, सेल की जगह की आ जाता, सेलिंग आ जाता, ठीक है, दा की आ जाता, वॉच आ जाता। क्लीयर है। चलिए, तद आपां नूं पता सीगा कि साडे कोले किहड़ा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूस टेंस है। अपने कोले ऑब्जेक्ट सीगा दा वॉच, तो अकॉर्डिंग टू इनू ऑब्जेक्ट नूं नहीं लिखना, पूरा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपां नूं इन्नी चीज़ चाहिदी है, सिर्फ आपां नूं इन्ना कंसैप्ट चाहिदा मेरे प्यारे दोस्तों, इन्ना सिर्फ। ना तो आपां नूं ये चैक करना है, ना आपां ये चैक करना, नथिंग। शॉर्टकट यही होएगी। वॉज सेलिंग है तो वॉज सेलिंग का की बन जाएगा, देखो अपने को टेंस किहड़ा आ, पास्ट कंटीन्यूस है, तो आपां देखांगे ऑब्जेक्ट इत्थे सिंगुलर है, सिंगुलर है तो की बनेगा वॉज, और ये नाल की बन जाएगा बीइंग, और सेल दी थर्ड फॉर्म की बन जाएगी, आपां कह देंगे कि सोल्ड। बस इन्नी चीज़ चेक करनी सी अगर इदां दा सेंटेंस हुंदा, बट इनफैक्ट इत्थे आपां नूं डिफरेंट दिता है। सो इहदा आपां आंसर चेक करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो गॉट इट। इहदा जो ऑप्शन होएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होएगा। द वॉच, देखो अपने को ऑब्जेक्ट आया, द वॉच आएगा, वॉज आएगा। हुण देखो इत्थे बस थोड़ा जिहा चेंजेस तुहानूं जरूर मिलेगा, ईवन कि इस पूरे दे पूरे कंसैप्ट के अंदर यू विल गैट ए लिटिल बिट डिफरेंस। तुसी जरूर चेक करना वा, इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही अपना तुसी यह पूरा आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल आपां नूं एक्टिव वॉइस जो स्ट्रक्चर दे रखा वा, अगर एक्टिव वॉइस की गल करिए जी, इज आर एम दे रखे है, या आप कह कॉन्टीन्यूस के अंदर वॉस वर दे रखे है, और इन्हां दे नाल टू है एंड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है। इहदा जो पैसिव वॉइस बनेगा, ऑलवेज याद रखना है कि ऑब्जेक्ट पैसिव च पहला आएगा, देन इज आएगा, आर आएगा, एम वॉज वर, और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी मैं इसको वापस रिपीट करांगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आएगा द न्यू सब्जेक्ट, फिर उहदे नाल टू बिल्कुल यथावत रहेगा, और टू तो बाद पैसिव दे अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर थोनों टू नहीं गिवन है, बट पैसिव दे विच इत्थे लगेगा बी तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट है। सो आपां पिक कीता है, द वॉच आया, वॉच अपने कोल सिंगुलर है, वॉच द वॉच आएगा। अगर इत्थे वॉच सेलिंग हुंदा तो आपां वॉच बीइंग सेलिंग, वॉच बीइंग सोल्ड कर देंगे, बट हुण आपां इत्थे की करांगे, टू लिखना वा, बी एंड सोल्ड बाय हर, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट होएगा। क्लीयर है। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए नैक्सट क्वेश्चन करो जल्दी फटाफट, शाबाश, वेरी गुड। सारे स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन नू देखना। पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सैवरल सिटीज़। ये थोनों एक एक्टिव वॉइस दिता है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना मैनू। चलिए कम ऑन, वेरी गुड, शाबाश। हुण तुसीं देखोगे कि सर सानू हैव तो बाद सीन दे रखे है, यू नो वेरी वेल कि आंसर कितना होना चाहिए। चलिए शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, सारे आंसर आ चुके हैं। तो आप हम चेक करांगे कि आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होएगा। ऑप्शन नंबर बी किद्दां राइट होएगा, वी कैन से दैट, आप क्यों कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है। सब तो पहले आप देखांगे कि सीन तो बाद अपने को सब्जेक्ट है। ये चीज़ां मैं तुहानूं बेसिक समझा रहा, बट तुसीं याद रखना है कि चेंज अपना अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज होएगा, ठीक है, किद्दां होएगा उहदे अकॉर्डिंग। सब तो पहले देखो रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि साडे कोले इत्थे कंटिन्यू कंडीशन देखनी है कि एक्टिव वॉइस इज, आर अते एम, वर्ब दी थर्ड फॉर्म। इन पैसिव वॉइस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द एक्टिव वॉइस हैज अते हैव, वर्ब दी थर्ड फॉर्म। तो चेंजेस की हो जाएगा, हैज हैव बीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म विल बी पैसिव वॉइस। वापस तो दसांगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे अंदर एक्टिव वॉइस इज, आर एम गिवन है, वर्ब भी इत्थे थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस होएगा।
अगर साडे कोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस साडे कोले हैज़ हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म है तो चेंज हैज़ हैव दे नाल बीन लग जाएगा। मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुके हैं। इस दे अकॉर्डिंग आपां देखांगे साडे कोले की आएगा, द सस्पैक्ट आया, द सस्पैक्ट अपने कोले आया। फिर उस तो बाद तुसी कहोगे कि सर इत्थे तां सानूं हैव सीन दे रखिया है बट साडे कोले इज किवें आया। गाइज पीपल इस दे विच सब्जैक्ट है, क्लेम इत्थे वर्ब है, क्लेम इत्थे वर्ब है। यू नो वेरी वेल कि क्लेम इत्थे वर्ब है तो इट मीनस क्लेम पीपल प्लूरल है तो क्लेम अपने कोले वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो ये अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस चेंज होएगा। सस्पैक्ट सिंगुलर तो इज क्लेम्ड आ जाएगा अपने को, और इज क्लेम्ड इत्थे नहीं है, इत्थे इज क्लेम्ड है। याद रखना है कि इज क्लेम्ड है, इज क्लेम्ड है। तो हुण तुसीं याद रखना है कि इत्थे देखो आपां नूं बाकी यथावत सेम हैव सीन आना चाहिए सी, इत्थे बी सीन दे रखे जो यह भी एरर होएगा। हुण अपने कोले सैकेंड अते यानी मैं कह सकदा बी अते डी दे विच जो कन्फ्यूजन आपां क्लीयर करांगे। इन्होंने दार के द सस्पैक्ट इज क्लेम टू हैव सीन इन द सैवरल सिटीज़, इन द सैवरल सिटीज़। हुण तुसीं याद रखना है एक तो पुलिस है एक पीपल है, ठीक है। इन्हां मैं कह सकदा बाई तो इन्हां तो पहला कदे भी बाई नहीं आएगा, ठीक है। पीपल इत्थे हट जाएगा और किसी भी सेंटेंस के अंदर या एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आपां नूं सब्जैक्ट नहीं गिवन है तो तुसीं ये मनना है कि अज्यूम तुहानूं करना पएगा, ठीक है। बिना पीपल तो कुछ होएगा नहीं, राइट है। तो थोड़ा ऑप्शन नंबर बिल्कुल केड़ा होएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होएगा इन दिस कंडीशन, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शाबाश। नैक्सट देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन है थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर सैट चो फ्रेम किए गए हैं। इदा नहीं कि थोनों बहुत ही हलवा क्वेश्चन कुछ मिलने, थोड़ा जिहा चैक भी करना पएगा। नैक्सट थोनों दे रखे है, हाँ जी, द ट्रेटर्स एंड शुड बी शॉट डैड। देखो शुड दे नाल बी दे रखे और जनरली टेंस के अंदर शुड दे नाल बी नहीं हुंदा है। ਇਹਦਾ आंसर ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फाइंड आउट करना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਬੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਡੈਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर सी बिल्कुल राइट होएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होएगा। किदां होएगा देखो, सब तो पहला आप चेक करांगे दे शुड, ठीक है। उस शुड तो बाद अपने को वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उस तो बाद आएगा ट्रेटर्स डेड, बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा। कंडीशन की कहती है दी, कंडीशन ये कहती है कि अगर सानू ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल के नाम बी दे रखे है अते वर्ब दी थर्ड फॉर्म गिवन है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म गिवन है तो बाई सब्जेक्ट करना है। इफ प्रेजेंट, ठीक है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट दे रखे है, जिदा कि अगर आपां नूं सब्जेक्ट दे रखे प्लस उहदे नाल जे आपां नूं मॉडल दे रखे वर्ब दी फस्ट फॉर्म गिवन है और ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आपां नूं चुक के की कर देंगे, सब तो पहला आपां ऑब्जेक्ट लियावांगे, दैन आपां की करना है कि मॉडल लियावांगे, दैन आपां बी लियाउणा, वर्ब दी थर्ड फॉर्म करांगे अते बाई करांगे अते तद अपने कोले की हो जाएगा एंड दे विच मैं कह सकदा हां कि सब्जेक्ट नूं आपां फिट कर देंगे। क्लीयर है। तो द सिंपल कंडीशन। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन सीगा PSPCL प्रीवियस ईयर चो पिक कीता सीगा। दिस इज बीइंग टॉट बाय हर। हुण तुसीं सब तो पहला चेक करना है कि इज इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये साडे कोले कादे च गिवन है, पैसिव दे विच गिवन है, पैसिव वॉइस गिवन है, पैसिव च गिवन है। तो इनू आपां कादे चेंज करांगे, एक्टिव च चेंज करांगे, यानी आपां इनू एक्टिव च चेंज करांगे। सब तो पहला आपां नू दिस इज बीइंग टॉट बाय हर, ठीक है। बाई हर दे रखा है तो बाई हर का की चेंज हो जाएगा। जे तुसी प्रोसीजर ना करना चाहते हो तो सी चेक करोगे, अदरवाइज इथों इज दे नाल बीइंग डायरैक्ट और डायरैक्ट दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म गिवन है तो तुहानूं सिंपल जिहा पता लग गया कि यार ये किते ना किते प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस चों फ्रेम किया गया है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दे अंदर तुहाडे कोल इज हुंदा आ, आर हुंदा है अते एम हुंदा है, प्लस इहदे नाल वर्ब दी फस्ट फॉर्म हुंदी है और उहदे नाल ऑटोमैटिकली ING जीरेंड फिक्स हुंदा है, ठीक है। तो गाइज कदे भी ये सेंटेंस इदा फ्रेम नहीं होएगा कि ये बीइंग भी पुट कर रहे हो तो वर्ब दी थर्ड फॉर्म भी कर रहे हो। इट मीनस अगर ये कर रहे हो तो टेंस तुहाडा सेंटेंस कादे च है, पैसिव वॉइस दे अंदर है। पैसिव च ते आपां नूं कादे चेंज करांगे, देखो अगर आपां जे हर है, हर एक सिंगल है ना, तो देखो विल तो आएगा नहीं, कैन तो आएगा नहीं, हैज़ तो आएगा नहीं, ऑटोमैटिकली कुछ नहीं चेंज करना यार। मैं तुहानूं नहीं दस्सिया कि सब्जेक्ट सी फिट करो, इज नूं इधर लाओ उधर लाओ, नथिंग, कुछ नहीं करना यार। तुसी ऑप्शन एरर फाइंड करना है। केस इज बीइंग दा है तो देखो विल दा तो कोई रोल ही नहीं है, कैन दा कोई रोल नहीं है, हैज़ दा कोई रोल नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करैक्ट होएगा। चलिए हुण इहदा थोड़ा रूल भी समझा देना मैं तुहानूं। रूल की कहंदा आ, रूल ए कहंदा है, नोट करो जरा, रूल ए कहंदा है गाइज
रूल ये कहता आ कि जदों भी तुहानूं पैसिव वॉइस दिता जाए स्ट्रक्चर नूं की करना, तुसीं ऑब्जैक्ट नूं पहलां ले आओ प्लस वर्ब लैके आओ, ठीक है, और मैं कह सकदा कि हैल्पिंग वर्ब फिट करो प्लस उहदे नाल तुसीं की करना अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में और टेंस दोनों चीज़ां है, ठीक है। इत्थे तुसीं वर्ब फिट कर दो प्लस उहदे नाल जे तुहानूं बाई गिवन है तो डायरैक्ट उहदा तुसीं सब्जैक्ट बना दो। ये चीज़ तुसीं याद रखना है, मतलब आई मीन कि ये तुहाडा सब्जैक्ट हो जाएगा और ये तुहाडे कोल ऑब्जैक्ट हो जाएगा जो वी हैव डिड देयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, यह थोनों पैसिव वॉइस हाल ही के एग्जाम च आ चुके हैं। कॉल माई नेबर इमीडिएटली, ठीक है, कॉल माई नेबर इमीडिएटली। तो हमेशा जदों भी वर्ब तो सेंटेंस शुरू हो रहा है, वर्ब तो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये वाला भी चेक करना होएगा। जिन्ने भी देखो ये अगर मैं थोनों बीइंग ए मतलब एज ए टीचर के तौर पर दसा तो वैरायटीज़ थोनों मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस सिर चो पिक किए हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इन्हों तुसीं चेक करना, होर कुछ नहीं चेक करना। इमीडिएटली के पीछे एल वाई क्यों आया, नथिंग, यदा तक कोई मतलब नहीं है। सानू इन्ना पता आ कि ये जो साडे कोले वर्ब है ना, इन्हें थर्ड फॉर्म च बदलना ही बदलना है, इन्हें थर्ड फॉर्म च बदलना ही बदलना है। और थर्ड फॉर्म च बदलेगा तो ये सब्जैक्ट की है, माई नेबर सब्जैक्ट है, माई नेबर सब्जैक्ट है। तो यार अगर आप ये सोचांगे कि सानू वर्ब सानू पहला दे रखी है, फिर वो सब्जैक्ट फिट कर रखे और फिर जो साडे नाल इत्थे मैं कह सकदा इनू ऑब्जैक्ट तो तुसीं कह ही नहीं सकते हो। इमीडिएटली ऑब्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जैक्ट होएगा तो तुसीं बाई च चेंज करोगे ना, इदां दा नथिंग। हुण हमेशा वर्ब तो जो सेंटेंस शुरू होया है उस तो पहला कुछ ना कुछ लगना जरूरी है, कुछ ना कुछ लगना जरूरी है। चलिए कमन अपना आंसर कमेंट बॉक्स दसो, फिर मैं तुहानूं इहदा एक्सप्लेनेशन दिना आ। देखो तुहानूं जिवें पता सीगा कि इहदे बारे ऑलरेडी क्वेश्चनस बहुत बारे दिते जा सकते हैं, तुसीं हमेशा इत्थे रूल लिख लो, लैट यूज करोगे, लैट तो बाद मेरे गाइस तुसीं ऑब्जैक्ट यूज करो और ऑब्जैक्ट तो बाद बी आएगी और वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी। पूरी इंग्लिश दे विच अगर तुहानूं कोई भी एक्टिव वॉइस वर्ब तो शुरू हो रहा है, ठीक है, जिद्दां आपां कह देने लेट माई नेबर इमीडिएटली, ठीक है, आपां कह देने कि लेट मी आस्क, आप जनरली सेंटेंस बोलते हैं लेट मी डू, लेट मी चैक, ठीक है, इदां कह देने आपां। हमेशा तुसी सेंटेंस दे विच की पुट करोगे, लेट पुट कीता। हुण अपने कोले ऑब्जैक्ट मैं इत्थे कैसे ऑब्जैक्ट पुट करना है तो अपने कोले आ जाएगा माई नेबर आ जाएगा, ठीक है, माई नेबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस उस तो बाद अपने कोले बी आ जाएगा, दैन अपने कोले कॉल दी थर्ड फॉर्म कॉल्ड आ जाएगा एंड इमीडिएटली आ जाएगा। थोड़ा जा बस चेंजेस करना सीगा, ये थोनों आई थिंक पता लग जाएगा। एरर कटांगे, माई तो सेंटेंस शुरू होएगा नहीं, लेट नेबर बी कोल्ड इमीडिएटली, लेट नेबर कोल्ड इमीडिएटली, इतने बी का रोल है नहीं, इस मीनस रॉन्ग है और ए वाला अपने को करेक्ट होएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नैक्सट, बहुत अच्छा है यार, ठीक है, इदा नहीं आ भी कुछ भी मैं थोनों हल्के हल्के करा दा पेपर च, थोनों हो सकता इदा का कुछ पूछा जाए, तुसीं कहोगे कि यार सानू तो बहुत आसान दसे सीगे इन्होंने, बट इदा का क्यों आ गया। सब तो पहला जे आप प्रैक्टिकली तौर पर चैक करिए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वापस तो दसांगे, सब्जैक्ट होएगा, इत्थे थोनों कोई भी हैल्पिंग वर्ब देने की बजाय मेन वर्ब दी गई है, प्लस उहदे नाल ऑब्जैक्ट फिट किया गया वा, ठीक है। यह है एक्टिव वॉइस। हुण इहनूं पैसिव वॉइस च बदलांगे। देखो दे रखे आपां नूं नथिंग, दे तो कोई मतलब नहीं है, सानू मतलब है इत्थे विजिटेड। विजिटेड कदे भी डायरैक्ट नहीं आएगा, डायरैक्ट नहीं आएगा ना, थोनों पता है वेरी वेल। और जिथे वर्ब की सैकेंड फॉर्म कित्थे आउंदी है, ये आउंदी है मैं कह सकता कि सिंपल पास्ट, यानी पास्ट सिंपल टेंस के यूज होती है। और यह कादे चलिया जाएगा, ये चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूस के अंदर चला जाएगा। पास्ट कंटीन्यू च जाएगा तो उत्थे आपां नूं वर्ब की मिलेगी, वॉज अते वर मिलेगी। मैनू दसो इहदे च वॉज वर है, नहीं है, इत्थे है, नहीं है, इत्थे है, नहीं है, तो अपने कोले ऑटोमैटिक बी बच गया। कहानी खत्म। कित्थे बाई यूज करना है, कित्थे दैम यूज करना है, कित्थे लास्ट वीक यूज करना है, स्ट्रक्चर नूं खत्म कर दो यार। रूल मैं तुहानूं ऑलरेडी समझा चुके हैं सॉरी, ठीक है। हुण तुसीं अकॉर्डिंग टू देखोगे, द जू तुसीं इत्थे पुट कीता, द जू आ गया। विजिटेड है, द जू एक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो तुसीं इत्थे वर दा यूज नहीं करोगे, वॉज दा यूज करोगे, वॉज तुसीं लाता। पैसिव च हमेशा वर्ब दी थर्ड फॉर्म विजिटेड आएगा, फिर उस तो बाद बाई आएगा, बाई तो बाद दे दा की बन जाएगा, दैम बन जाएगा, और बचा कुछ लास्ट वीक इत्थे आ जाएगा, बिल्कुल राइट होएगा। नाउ वी कैन चेक अवर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डेफिनेटली इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को समझ आया है। चलिए नैक्सट देखते हैं। नैक्सट बहुत अच्छा है, मैं स्पीड नहीं बढ़ावांगा, बिल्कुल हल्के हल्के तुहानूं मैं करावांगा, जिस करके कि यार कंसैप्ट समझ आना बहुत जरूरी है। हुण देखो जदों भी WH तो शुरू होएगा, WH तो अगर कोई भी शुरू हो रहा है पैसिव वॉइस, उत्थे रूल की इंप्लीमेंट होएगा, ये भी जरूरी है।
ठीक है। WH तो याद रखना कुछ चीज़ां होर मैं तुहानूं दस देना WH तो पहला भी, अगर हैल्पिंग वर्ब तो भी शुरू हो रहा है कोई भी एक्टिव वॉइस है तो आप हैल्पिंग वर्ब नूं सेम लिखांगे। जे डू डज तो शुरू हो रहा है तो डू डज का कादे च बदलिया जाएगा, उस डू डज है तो इज आर एम च बदलिया जाएगा। वॉजवर है तो वॉजवर बींग दे विच चेंज हो जाएगा। डिड है तो वॉजवर च चलिया जाएगा। इदां ही अगर साडे कोले कोई भी मैं कह सकता है कि WH शुरू हो रहा है तो WH ही सेम रखांगे। बट एक चीज़ याद रखियो कि हू है, हू दा हमेशा की चेंज हो जाता है, बाई होम हो जाता है। की हो जाता है? बाई होम हो जाता है। पहला तरीका तो ये है, अगर तुसी बाई होम नहीं पुट करना तो एंड विच तुहानूं बाई पुट करना पएगा। ये भी तुहाडे कोल रूल होना इंपॉर्टेंट है। कम ऑन गाइज, समझ लेना है कि जदों भी सानू हू तो कोई भी इंटैरोगेटिव सेंटेंस शुरू होएगा तो इदां दे एक्टिव वॉइस दे विच जनरली आपां इहनूं हू नूं कादे च बदलांगे? बाई होम दे विच बदलिया जाएगा। अदरवाइज जे साडे कोले देखो WH दी गल करदे हैं, अगर साडे कोले वाई है, जे मैं इस तो अलावा वाई तो अलावा दसां कि वैन है, एंड आफ्टर दैट जे मैं गल तुहानूं दसां कि वेयर है, इफ वी हैव ए वट है, दैन आपां गल करिए कि साडे कोल इस ए अगर इदां दे हाउ है, जनरली आपां इन्हां नूं की करांगे? इन्हां नूं सेम ही लिखांगे। दूसरा तरीका समझ लो स्ट्रक्चर। जे साडे कोल WH है, WH तो बाद सानू डायरैक्ट की दिता जा सकता है? स्ट्रक्चर तुसीं समझना लाजमी है क्योंकि अदरवाइज सेंटेंस रोंग होने के ज़्यादातर चांसेस होंगे ने। ठीक है, हैल्पिंग वर्ब दी जा सकती है, मेन वर्ब दी जा सकती है। ठीक है, और जनरली सेंटेंस के अंदर ए फ्रेम। दूजा तरीका WH है, सानू हैल्पिंग वर्ब देने तो बाद इत्थे सब्जैक्ट दिता जा सब्जैक्ट होएगा फिर साडे कोले की होएगी? दी मेन वर्ब होएगी। मेन वर्ब च फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सैकेंड फॉर्म भी आ सकती है, अते थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ये भी चीज़ याद रखियो। ठीक है, सैकेंड फॉर्म आएगी तो फिर इत्थे साडे कोले हैल्पिंग वर्ब डायरैक्ट थर्ड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल आ जाएगा। चलिए, इस तो बाद आपां कह सकते हैं कि साडे कोले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिमिलरिटीज पैसिव वॉइस नूं आपां जदों चेंज करांगे की करांगे? पैसिव नूं चेंज करांगे। WH साडे कोले सेम आएगा अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट नूं। जदों आपां ऑब्जेक्ट नूं सबजैक्ट चेंज करांगे उहदे इत्थे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हुण तुसीं अपना आंसर फाइंड करो। आंसर अपना फाइंड करो। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है जी, ठीक है, सारे बिल्कुल 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 अपना आंसर दो, अपना आंसर दो। किसी भी स्टूडेंट नूं कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं इस पर्टिकुलर सैशन के अंदर उसनूं वापस तो करावांगा। चलिए 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 चलिए, देखो हू दे रखे है, इत्थे इट का कोई मतलब नहीं है, वॉज का कोई मतलब नहीं है। हुण साडे कोले ऑप्शन बच गया, एलिमीनेट करना बहुत जरूरी है, यानी साडा ऑप्शन या तो सी दे विच है या डी दे विच है। हुण हू तो बाद कंप्लीटेड दे रखे, और कंप्लीटेड सानू वेरी वेल पता है कि पास्ट सिंपल दे अंदर वर्ब दी सैकेंड फॉर्म आउंदी है, जो कादे च चला जाएगा? ये चला जाएगा वॉज अते वर दे अंदर। हुण देखो इट दे रखे, इस तो बाद हुण इट दे रखे है तो मैं इत्थे सेंटेंस दे स्ट्रक्चर ते जावांगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए गाइज, तो यदा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल की होएगा? राइट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होएगा। देखो साडे कोले की होएगा? बाई होम होएगा। हू तो कादे चला जाएगा? बाई होम च चला जाएगा। उस तो बाद अपने कोले की आएगी? इनदी हैल्पिंग वर्ब आएगी। दैन अपने कोले की आ जाएगा? जो ऑब्जेक्ट सीगा, ऑब्लिक में इत्थे ऑब्जेक्ट कर देना। ठीक है जी, और उस तो बाद अपने कोले वर्ब दी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और याद रखना है बाई आप बाद च यूज नहीं करांगे, इत्थे बाई है, दिस इज। ठीक है, हाँ जी, तो बाई आप पहला ही यूज कर चुके हैं। जे आप होम का हू तो रखना है तो तद आप लास्ट में बाई यूज करना पै सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होएगा, बल्कि सी का स्ट्रक्चर सही नहीं है। इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द हाउ, व्हाट एंड व्हाई, वेयर, WH फैमिली। ठीक है, कन्वर्जेंस रूल इज WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट द हु एंड हुम। अच्छा, हुम आ गया तद हु चला जाएगा, ये भी याद रख लो। हु है वो इनटू बाई हुम चला जाएगा, याद रखना तुसीं, ये भी इंटेरोगेटिव के अंदर रूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। डू दे सेल फ्रूट्स, वाओ क्या बात है, बहुत अच्छा है। चलिए जल्दी जल्दी दसो इसका आंसर की होएगा। हेल्पिंग वर्ब तो शुरू हो रहा है, डू है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये सब तो पहला जो अपने को एक्टिव वॉइस गिवन है, कादे च बदलना है? पैसिव च बदलना है। तो डू दा डू तो सेम, चलो मानते हैं भी, किद्दां आएगा? कोई पॉसिबिलिटी है? इज इट पॉसिबिलिटी? भाई डू दे नाल कदे भी तुसीं देखिया वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी?
तो आई थिंक आंसर तुसी फाइंड कर चुके हो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स बी आंसर कह रहे हैं, बी आंसर कह रहे हैं, चेक कर लेने। बिल्कुल बिल्कुल, यू ऑल आर राइट यार, ऑल आर राइट। बिल्कुल आउट किवें करांगे, देखो डू नहीं आएगा यार, देखो डू अते डज है, ये हुंदे है प्रेजेंट सिंपल दे अंदर। पैसिव कादे च जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दे अंदर। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दे अंदर की होएगा, इज होएगा, आर होएगा अते एम होएगा। ठीक है, ये भी डू नहीं है, डू नहीं है, आर है, क्लियर है, बिल्कुल खानी खत्म। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। हुण थोड़ी स्पीड ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੈਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾਇਸ, ਤਾਂ ਹੈਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸਿਵ ਚ ਬੀਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵॉचवर ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਹੈਡ ਬੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਡ ਬੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਕੀ, ਐਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਟ ਨਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਈ द न्यूज़ या एट न्यूज़। यस कम ऑन गाइज, ऑप्शन नंबर ए और बी दे विचों, ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शन बी ਨੂੰ टिक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ਇੱਥੇ एट यूज होएगा, ये भी तुसी याद रखना है। एट यूज क्यों होएगा, नोट तुसी याद रखना है। सर्टन वर्ब टेक पर्टिकुलर, जिमें क्या पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस हैं विद द एग्जाम्पल सरप्राइज एट है, ठीक है, जिमें कि न्यूज़ दे रखे सरप्राइज है। इस तो अलावा तुसी देख सकते हो जिमें कि डेकोरेटेड विद हुंदा है, कंटेन इन है, हैंस बाई एंड सब्जेक्ट बाइज बीइंग रिप्लेस बाई द दीज पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस होएगा। तो इत्थे बाई दा यूज तुसी नहीं करोगे, इनफैक्ट ये भी याद रख लेना कि एट न्यूज़ विल बी राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट है, द रूम वॉज क्लीनड, रूम वॉज क्लीन। कम ऑन क्विकली यार, जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो। वॉज दे रखे है, तो वॉज दे नाल तुहानू वर्ब दी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन है। वॉज दे नाल थर्ड फॉर्म जनरली हुंदी है, वॉज दे नाल जनरली थर्ड फॉर्म हुंदी है, नहीं हुंदी। तो अगर नहीं हुंदी तो इट मीन से पैसिव है, पैसिव है, तेन एक्टिव बदलो, एक्टिव बदलोगे तो यह यानी पास्ट कॉन्टीन्यूस पहले टेंस आ जाएगा, यानी मैं कह सकते हैं पास्ट सिंपल च आ जाएगा। पास्ट सिंपल के अंदर शुड का कोई मतलब नहीं है, एंड ठीक है, हैज़ का कोई मतलब नहीं है। समवन, वेरी गुड, ये भी हो सकता वा, ठीक है। हुण तुहाडे कोल ऑप्शन नंबर मैं कह सकता बी अते डी है, बी अते डी है, बी अते डी है। विच इज राइट चॉइस, विच इज राइट चॉइस, विच इज राइट चॉइस। देखो इत्थे तुहानूं दे रखे द क्लीनर क्लीनड, देखो क्लीनर तो इत्थे गिवन ही नहीं है। ये देखो किसी रूम नूं साफ कौन करेगा, ठीक है, कोई मैं कह सकता पशु थोड़ी रूम नूं साफ करनगे, कोई ना कोई तो करेगा ना। कौन करेगा, कोई मनुख करेगा। मैं कह सकता कोई लिविंग थिंग, नॉन लिविंग तो करेगा नहीं, कोई लिविंग थिंग ही करेगा ना, कोई लिविंग थिंग करे। याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स ने नोट डाउन करना है। रूल नंबर 9 के अंदर, रूल नंबर 9 के अंदर तुसी की करना है, इत्थे समवन का यूज नहीं करोगे, ये चीज़ याद रख लियो, दैट विल बी रॉन्ग, एंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट चॉइस होएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टू डू इट, सेम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आई एम अगे दे नाल टू दे रखे तो डेफिनेटली अपने कोले बी प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, मतलब बी डन जरूर आएगा अपने कोले, बी डन आएगा, ये नहीं है, ठीक है। शुड का कोई मतलब नहीं है, हैज़ का कोई मतलब नहीं है। एम दे रखे इट है, इट दे नाल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए क्लियर हो जाएगा। आई थिंक बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स का पता लग गया, आंसर नंबर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, कम ऑन। चलिए पेंट द विंडोज, ठीक है, पेंट द विंडोज। चलिए पेंट द विंडोज, पेंट द विंडोज ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर किड़ा होएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि देखो विंडो तो डायरेक्ट नहीं होएगा, विंडो तो डायरेक्ट नहीं होएगा, लेट तो शुरू होएगा क्योंकि वर्ब आपां नूं दे रखी है, फिर इहदे नाल आपां ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे, फिर इहदे नाल आपां बी फिट कर देंगे, फिर इहदे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म फिट कर देंगे, अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन सी कंट्रोल दिस सिचुएशन। एक मॉडल वर्ब दी है, मॉडल का मॉडल ही आएगा। चलिए मैं तो थोड़ा जिहा रूल थोड़ा रिपीट करा देना। देखो मॉडल वर्ब के अंदर मॉडल आएगा प्लस उहदे नाल बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बस ये चीज़ याद रखना है। इत्थे कैन दे रखे, बी दे रखे, कंट्रोल बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। कैन दी सिचुएशन बीन नहीं होएगा, ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है। कैन दी सिचुएशन एंड कंट्रोल बी नहीं दे रखा, बिल्कुल गलत है। कैन बी सिचुएशन बी कंट्रोल बाई हर। हुण देखो तुहाडे कोले ए वाला और ए वाला है, इंटरोगेटिव है, बिल्कुल सेम रहेगा। हुण देखो कैन तुहाडे कोले कैन गिवन है, दिस सिचुएशन बी कंट्रोल बाई हर, बी कंट्रोल बाई हर। अते हुण तुसीं देखोगे कि तुहानूं किते ना किते देखो फस्ट अते डी दे अंदर डिफरेंस फाइंड करो भी डिफरेंस की है। जब डिफरेंस तुहानूं मिल गया तो ऑटोमैटिकली तुहाडा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इत्थे तुहानूं दे रखिया दिस, इत्थे दिस, इत्थे तुहानूं देखिया द सिचुएशन का कोई रोल नहीं है ना। तो कम ऑन तुसीं की आंसर फाइंड करोगे, क्विक
क्विक वैसे वेखण नूं सानूं लगेगा कि यार सब कुछ सेम ही है, नहीं है यार, आंसर नंबर ए दा राइट होएगा। रूल नोट कर लो सारे स्टूडेंट जिन्ने भी है। मॉडल वर्ब दे अंदर कैन, मे, माइट, कुड एंड शुड, इन्हां तो बाद सब्जेक्ट है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। मॉडल ऑब्जेक्ट एंड बी वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज करो, अते बाई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, याद रखियो ये तुहाडा स्ट्रक्चर बनेगा कदे च पैसिव वॉइस दे अंदर। चलिए 30 नंबर, आई हैव टू डिपोजिट सम मनी, ठीक है, तुसीं याद रखना है कि इत्थे वापस तो रूल उही इंप्लीमेंट होएगा जो आपां जस्ट पिछे कीता है। पैसा किसी ने तो जमा कराया ना, किसी ने कराया सम मनी, ठीक है। हुण तुसीं की करना है, इत्थे तुहानूं हैव टू दे रखे है, और याद रखना है कि जदों भी तुहानूं हैज़ प्लस हैव या इज़ आर एम टू दे रखे है तो याद रखना है कि इस टू तो बाद की फिट कर दोगे बी, और बी तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म। देखो बी आपां नूं गिवन है, चलो ठीक है, बी आपां नूं गिवन है, इत्थे बी गिवन नहीं, ये तो कैंसल कर दो। हुण साडे कोले आपां सम मनी है, सम मनी अपने कोले सिंगुलर है या प्लूरल है, अकॉर्डिंग ये आप इज आर माफ करना जरा हैज़ है फिट करांगे। चलिए सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। ऑप्शन नंबर बी तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग हो गया, शाबाश बच्चे शाबाश। होर दसो जी, होर दसो। हुण तुहाडे कोले पहले अते दूजे च तुसीं डिफरेंस दसना। बहुते स्टूडेंट्स फर्स्ट नाल जा रहे हैं, चेक कर लेने हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, राइट चॉइस राइट चॉइस राइट चॉइस, बिल्कुल शाबाश। देखो सम मनी साडे कोले सिंगुलर है ना, तो इस करके आप हैज़ दा इत्थे यूज करांगे, क्योंकि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होएगी, ये याद रखना है, पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू वेस्ट टाइम, तो पैसा अपना पैसा या मैं कह सकता टाइम अपना वेस्ट क्यों कर रहे हो। देखो WH दा WH सेम रहेगा, याद रखने इत्थे हू दा केस नहीं है, हू दे विच बाई होम कर दिंदे, ठीक है। डू है तो डू कादे चला जाएगा, इज अते आर अते एम च जांदा, प्लस इहदे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म हुंदी। अगर सानू इज आर एम ऑलरेडी हुंदा फिर आपां बीइंग वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज कर दिंदे। देखो इज बीइंग दे रखे यार, इहदा तां इन्ना लम्मा तां आपां जाणिया नहीं है, हैज़, ठीक है। और इत्थे देखो इज बीइंग तां आपां तां लाउंदे ना जी गिवन हुंदा तो पहले ही अपने कोले ऑप्शन बच गया ना, चेक कर लेने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आएगा, राइट राइट राइट, ठीक है। व्हाट, वाई, व्हेन एंड डू, डज एंड सब्जेक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ गया, एक्टिव वॉइस के अंदर गिवन है तो व्हाट, वाई एंड व्हेन सेम आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट है, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, कि आप कल पार्सल भेज सकते हैं ना भाई, हुणी भेजो, सानू हुणी लोड़ है। देखो कैन तो आएगा ही आएगा, मॉडल वर्ब है, ये नाल बी आएगा, वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी, बस ये चीज चेक कर लो। कैन बी वर्ब दी थर्ड फॉर्म, सेंड नू सेंट बना रखे, बिल्कुल सही है। ये नाल बी सेंट कर रखे है, ये नाल बी सेंट कर रखा है, ये नाल आपां नू डायरैक्ट कर रखा, ये तो अपना होएगा नहीं। इत्थे बी देखो डिफरेंस थोनों मैं वापस तो दस देना, याद रखना है। वैसे अगर जनरली सेंटेंस की गल करिए, अगर मैं पैसिव का दस रहा, पैसिव के अंदर सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब आएगी MD मॉडल, फिर उस तो बाद अपने कोले बी आएगा, प्लस वर्ब दी की आएगी अपने कोले थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म प्लस अपने कोले बाई आएगा, और फिर उस तो बाद अपने कोले बचा खुचा जो भी ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर हो सकता है। जे अपने कोले यही चीज़ अगर आप पहला ले आंदी है, ठीक है, तो फिर अपने कोले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इतने बी आ जाएगा, प्लस ये स्ट्रक्चर बस सेम थोड़ा जिहा चेंजेस हो जाना है। अकॉर्डिंग टू दिस इनू प्लीज़ चेंज कर लो तुसीं। हुण तुहाडे कोले कैन वी दे रखे, कैन की दे रखे, वी दे रखे। वी जे तुहाडे कोले सब्जेक्ट है तो जिस भी एक्टिव वॉइस के अंदर कोई सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस जाके वो पिछे बनी बाई इत्थे आ जाएगा। क्लीयर है, ये भी तुसीं याद रख लेना है। तो डेफिनेटली इत्थे देखो सेंटेंस की जा रहा है, ऑप्शन तुसीं दसना है, कमेंट बॉक्स आंसर होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स का। हाँ जी, बहुते स्टूडेंट्स किस नाल जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी नाल जा रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी नाल जा रहे हैं, ऑप्शन सी नाल जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो पहला तो मॉडल वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल शाबाश बच्चे। तो ऑप्शन सी नाल चेक कर लेने, बिल्कुल थोड़ा ऑप्शन नंबर सी राइट होएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है। चलिए नेक्स्ट है 16, ठीक है। हिज सबॉर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफ, ठीक है, ऑफेंस। तो चलिए गाइस, ये सब तो पहला आपां नूं चेक करना होएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, एक्यूज दे रखे है। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश।
हाँ जी, हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी। देखो एक्यूज यानी मैं कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट कंटिन्यू च जाएगा, ठीक है। एक्यूज डायरेक्ट तो होएगा नहीं हेड वाला, ठीक है, ठीक है। ए वाला डायरेक्ट नहीं होएगा। सर कहते वाज एक्यूज हो सकता है, वाज एक्यूज हो सकता है, चलिए ठीक है। उस तो बाद वाज एक्यूज, ठीक है। हिम दा कहते ही बनाना है जी, हिम दा कहते ही बनाना, बिल्कुल एग्री है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी नाल जा रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, बहुत अच्छे, शाबाश। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਖਰੇ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਲਿਏ, we will know the outcome of these experiment after 6 months, ठीक है। चलो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ फाइंड करो, ਕੀ आंसर होएगा क्विकली यार, क्विकली। ऑप्शन नंबर ए आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए आ चुके हैं आंसर ਤੁਹਾਡਾ। देखो विल दे रखे है तो विल दे नाल विल बी लग जाएगा और वर्ब दी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, विल दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ना। चलिए तुसी इत्थे चेक करो, देखो विल दे रखे है, विल दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म होएगी, विल दे नाल वर्ब अपन देखो थर्ड फॉर्म है, इत्थे नहीं है, ठीक है। विल हैव नहीं आएगा। हुण इन्हां दोनों च डिफरेंस की है, ये चीज़ तुसी जरूर चेक कर लो। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरीमेंट, इत्थों तक कंटिन्यू आएगा। आउटकम कला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी याद रखो, क्योंकि इत्थे मैं कह सकता है कि दोनों कनैक्ट हो रहे हैं। आउटकम कादा आ, किहड़े कादा आउटकम है? आउटकम कबड्डी खेलण दा है, क्रिकेट खेलण दा है, नहीं है ना, दीज एक्सपेरीमेंट दा है, जो एक्सपेरीमेंट आपां कीता सीगा। सो इस करके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा, सही है। 18th नंबर, 18th नंबर, 18th नंबर, 18th नंबर, चलो भाई 18th नंबर चेक करना है आपां, सही की होएगा। समवन सॉ हिम पिकिंग अप ए गन, पिकिंग अप ए गन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होएगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन है तुहाडे लिए, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, याद रखो। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे को, बट आपां सिर्फ वही क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारिया बुक्स गाइड के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, हज़ारों क्वेश्चन आप पैसे वाइज सॉल्व कर सकते हैं, बट जरूरत यह है कि जो पेपर के अंदर किदां दे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट वही है। मैं थोड़ा मेरे इस पर्टिकुलर सैशन यही चीज़ कोशिश की है, सारे दे सारे रूल अते रेगूलेशन जिन्ने भी जिद्दां जिद्दां एक्टिव वॉइस नो पैसिव वॉइस, पैसिव तो एक्टिव बन सकते हैं, किदां दे सेंटेंस हो सकते हैं, सारे रिपीट करवाए, ठीक है। चलिए चलिए, वेरी गुड, शाबाश। इतने बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते सर 100 दे रखे हैं तो इन्हू वॉज सीन कर दो जी, वॉज सीन कर देंगे तो मेरे गाइज इतने वॉज सीन वॉज सीन वॉज सीन वॉज सीन है। कहते जी इतने तुसी वर्ब दी थर्ड फॉर्म पिक करनी है, थर्ड फॉर्म तो कहते जी नाल कोई नहीं है, सब कन्फ्यूज है, एवरीबडी, मतलब बिल्कुल सारे ने वक्रे वक्रे ऑप्शन आ रहे हैं, सब दे वक्रे 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 वक्रे, ओ माई गॉड, वक्रे वक्रे, सब दे वक्रे वक्रे। राइट चॉइस देखो, पिकिंग अप, पिकिंग अप एक गन जो भी सानू आई, यानी मैं कह सकता है कि जीरंड के अंदर दी गई है तो वह बिल्कुल जीरंड ही रहेगा, ये भी याद रखना है तुसी, ठीक है। इहदा एक रूल है, रूल दे विच आपां डिस्कस करांगे। आई वॉज सीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म गिवन है, थर्ड फॉर्म गिवन है ना, इनू आपां ऑलरेडी हिम नू सब्जेक्ट बना चुके हैं, तो बाकी पिकिंग अप ए गन बिल्कुल सेम रहेगा, पिकअप नहीं होएगा, ठीक है। वैन का यूज नहीं होएगा, बाई समवन पिकअप नहीं होएगा। आई मीन कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होएगा, ठीक है। चलिए नैक्सट देखते हैं आप, नैक्सट 19वां नंबर क्वेश्चन की कहता है, वाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, ठीक है। तुसी मेरे प्रपोजल ने क्यों नहीं एग्री, क्यों नहीं एग्री सी, ठीक है। आप मेरे प्रपोजल के साथ एग्री क्यों नहीं थे, ठीक है जी। देखो वाई दा वाई सेम आएगा, हुण डिड आया, डिड तुहानूं पता है कि पास्ट सिंपल च आउंदा है, वॉज वर्ब च जाएगा, अकॉर्डिंग टू द की दे अकॉर्डिंग जाएगा, यू दे अकॉर्डिंग जाएगा। हुण यू दे अकॉर्डिंग जाएगा तो तुहानूं पता है कि माई इत्थे तो सीधा आएगा नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। यू टू माई प्रपोजल, अकॉर्डिंग टू माई प्रपोजल आ रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हुण मेरा प्रपोजल है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर, देखो नॉट भी बिल्कुल सही आएगा, नॉट भी अपने अकॉर्डिंग ही सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी अते ऑप्शन डी कर रहे हैं, ऑप्शन बी अते डी कर रहे हैं, बहुत सारे ए नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी अते डी आंसर दे रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बट माय गाइस ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट होएगा। चलिए देखो हम डिफरेंस तो मैं दस देना है। वाई वॉज माई प्रपोजल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यार। देखो इस तो बाद हैल्पिंग वर्ब आएगा, फिर तुहाडे कोले सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट दे रखा तो नॉट लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उस तो बाद मेन यानी थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब दी,
प्लस उस तो बाद जे सानू सेंटेंस के अंदर टू गिवन है तो टू लाओ, ठीक है। और एंड में साडे कोल बाई प्लस ऑब्जेक्ट ने बनना ही बनना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव डेफिनेटली WH है तो इंटेरोगेटिव लगेगा। सो दैट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल वो पसंद करते हैं भी लोग उन्होंने मतलब मैक्सीमम सर कह के बुलाउन, ठीक है। तुहाडे चों भी बहुत सारे है। चलिए गाइस की होएगा, ही दा ही बिल्कुल सेम है। हुण तुसीं कहोगे ए वाला ही नहीं है यार, ठीक है। चलो बई चलो क्विकली शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छे है। ये थोनों इदां दा ही तुसीं नोट कर लो, 30 तरीक नूं या 31 तरीक दी सीरीज़ दे अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होना है इदां दा, जिस करके कि स्टूडेंट्स नूं थोड़ा जिहा कन्फ्यूज किया जाए। चलिए वेरी गुड, कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना राइट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ही लाइक्स टू भी, अच्छा ठीक है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, ठीक है। कॉल दा बिल्कुल कहते सर कोल्ड इत्थे नहीं है, एंड कोल्ड इत्थे नहीं है, कहते कोल्ड इत्थे नहीं है। बहुत सारे ए नाल जा रहे हैं। चलो भी जे तुसी ए नाल जा रहे हो तो आपां भी तुहाडे नाल हो जाने। तुहाडी सहमति तुहाडी संतुष्टि साडा सर्वधर्म है। सो मेरे प्यारे दोस्तों वापस तो दसना चाहांगा, यह सीगे 20 बेस्ट पैसिव्स। याद रखना कि पैसिव वॉइस दे प्रीवियस ईयर, जिन्ने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, चाहे वो साडा PPSC एग्जाम होया, चाहे साडा PCL होया, इस सैशन नूं तुसीं एक बार वापस तो देख सकते हो। कुछ चीज़ां मैं थोनों ग्रामेटिकली चीज़ां करैक्ट दसियां, नॉट करैक्टर, ठीक है, करैक्ट दसियां। और सेंटेंस नंबर जो जिन्ने भी थोनों दिते गए ने इन्होंने अच्छे तरीके नाल नोट कर लो। PDF थोनों इहदा मिल ही जाएगा फॉर रिवीजन वर्क लई। और वापस तो रिपीट कर देना चाहांगा कि पंजाब दा सब तो बेस्ट यूट्यूब चैनल पंजाब पटवारी दी थोनों बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन कराएगा, बहुत सारा मटीरियल दिता जाएगा। तो अपना मिशन जिन्ना स्टूडेंट्स दे एग्जाम हो चुके हैं, कुछ नहीं चिंता करनी, किन्नी कट ऑफ कोठा बस कहानी खत्म, पेपर देता कहानी खत्म हो गया, ठीक है। नहीं होया तो ठीक है, नेक्स्ट मिशन शुरू करो, अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। पढ़ना जरूर हो।